Hello students, how are you all? I welcome you in today's class. In this class, we'll be continuing about the chapter digestive system. Already I have given you brief introduction about what digestive system is, what all parts are involved in digestive system. I have already uploaded videos, you can just check it out. In this class, I'll be discussing about process of digestion in mouth and process of digestion in stomach. Now, this is very easy and very important topic. Basically, in this part, we will be having three main important parts where digestion occurs. First is mouth, second is stomach, and third is duodenum. These are the three major sites of digestion. Okay, जहाँ पर खाना digest होता है. In this class, we'll be discussing about process of digestion in mouth and process of digestion in stomach. So let's get started. We'll start the topic. Now, basically, whenever you take food and you put it into your mouth, जब ये निवाला हमारे मुंह में जाता है, as soon as it enters into your mouth, salivary glands are activated, and this salivary gland starts secreting saliva. ये क्या बनाने लगते हैं? As soon as you put food into mouth, they start secreting saliva. Now this saliva makes your food moist. ये निवाले को कैसा कर देते हैं? They make it very moist. So once that food becomes moist, now it is called bolus. क्या बोलते हैं अब हम चीज को? इसको ना अब हम एक नाम दिया गया है, that is bolus. As soon as that food mixes with saliva and mucus, it becomes like a paste. Soft हो जाता है वो, and it is now called as bolus. Why is it important to make it moist? So that it can be easily swallowed. Okay, now swallowing का एक term दिया हुआ है NCERT में, it is called deglutition. Okay, उसको deglutition भी बोलते हैं, swallowing को. So what is importance of bolus? So bolus का importance है कि it can be easily swallowed. खाना जो है वो soft हो जाता है. Now next we'll be discussing about what all things are there in saliva. Okay, saliva में क्या क्या है? So saliva basically contains water. It has mucus. It has a antibacterial enzyme called lysozyme. It has bicarbonate and it has an enzyme called salivary amylase. So इतनी चीजें हैं saliva में. You can just check it out. Water, mucus, lysozyme, bicarbonate and salivary amylase. Now we will be discussing function of each and every one. Now water और mucus का काम क्या है saliva के अंदर? तो that basically makes your food moist. Okay, वो खाने को soft बना देता है ना? हमने अभी bolus की बात की थी, तो it can be easily swallowed. So that is function of water and mucus. If I talk about lysozyme, so lysozyme is basically antibacterial. Lysozyme होने की वजह से अगर हमारे निवाले में कोई बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रोब्स है, तो it will be killing that bacteria. Though lysozyme is this is the same lysozyme, it is also present in your tears. Okay, and what is it? What is its nature? It is basically antibacterial. Now salivary amylase is also very important enzyme. We will be discussing its function in detail, but first we'll be talking about bicarbonates. Now what are bicarbonates? Now bicarbonates are very important बच्चों. सलाइवा में बाइकार्बोनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर ये बाइकार्बोनेट कम ज्यादा हुए तो इट कैन अफेक्ट pH. pH you know, pH is हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. सलाइवा का एक स्पेसिफिक pH है बच्चों. What is that pH? Now that pH is 6.2 to 6.7. इससे अगर ज्यादा कम ज्यादा हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एंजाइम्स वोंट बी फंक्शनिंग. काफी बार ये 7.3 तक भी जाता है, बट दैट इज अ जनरल रेंज, वर्किंग pH है. सो अगर 6.2 से कम हो गया, अगर 5 हो गया, 4 हो गया, देन ऑल्सो एंजाइम्स विल नॉट फंक्शन. या तो 8 हो गया, 9 हो गया तो भी एंजाइम्स विल नॉट फंक्शन. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली सलाइवा का एक स्पेसिफिक pH है जिसपे एंजाइम्स काम करते हैं. तो ये pH को कौन मेंटेन करता है? सलाइवा के pH को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज दिस बाइकार्बोनेट्स. दे मेनली हेल्प इन मेंटेनिंग द pH. Now I'll be talking about an enzyme called salivary amylase. Now salivary amylase is the enzyme which mainly digests starch. हमारे खाने में जो भी स्टार्च है, हमारे निवाले में जो भी स्टार्च है, वो स्टार्च will be digested by salivary amylase. Now you know कि starch is a carbohydrate, isn't it? We all know it's a carbohydrate. तो what does this enzyme do? ये एंजाइम क्या करता है? तो ये स्टार्च को तोड़कर उसको किस में कन्वर्ट करता है, किस में ब्रेक करता है? तो दैट इज माल्टोज. Starch is getting digested. Now starch is a long chain of glucose molecules. See,
इस तरह से लंबी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की चेन होगी। तो व्हाट डज दिस एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज डू, ये उसको दो दो के टुकड़े में ब्रेक करता है। जस्ट सी दिस, दो दो दो, यू कैन सी। सो ये व्हाट आर दिस टू, तो व्हाट इज माल्टोज, सो माल्टोज इज दो ग्लूकोज when they are joined, दो molecules of glucose when they are joined, that is called maltose। तो इस तरह से salivary amylase basically digest starch, it breaks down starch, वो starch को तोड़ता है, ठीक है। approximately 40-50% starch is getting digested in your mouth, और वो किस में कन्वर्ट करता है ये इतने starch को, तो basically it is converted into maltose। so this is what happens in your mouth, this is process of digestion in mouth। इसके अलावा इवन टीथ हेल्प अलॉट बच्चों, टीथ हेल्प इन च्यूइंग, है ना। वो जो निवाला है दैट्स क्वाइट बिग, सो व्हाट डज टीथ डू, दे मेनली ब्रेक डाउन द फूड और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। व्हाई दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज इंपॉर्टेंट, सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट, एंजाइम उसको तोड़ सके, है ना। उसको हम फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज केमिकल डाइजेशन। सो इस तरह से इवन टीथ आर इन्वॉल्व, if I talk about process of digestion in mouth, but as such they are not secreting any enzyme or something, they are simply breaking down the food। ये सारी जो चीजें हैं saliva, that is being secreted by what, that is being secreted by salivary glands, है ना। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये ऑलरेडी हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि देयर आर 3 बेसिक सलाइवरी ग्लैंड्स, इजंट इट। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, दे मेनली फॉर्म सलाइवा। And already I discussed what all things are there in saliva and how does the digestion proceed. Now you must have seen that there is only and only digestion of carbohydrate, बाकी कुछ भी मुंह में डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट इज गेटिंग डाइजेस्टेड, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। व्हाट इज माल्टोज, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नाउ फूड विल गो वेयर, नाउ फूड एंटर्स इनटू इसोफेगस। नाउ इसोफेगस इज योर फूड पाइप, ओके। इसोफेगस इज व्हाट, इसोफेगस इज अ फूड पाइप। इसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन अकर्स, डाइजेशन वाइजेशन कुछ इसोफेगस में होता नहीं है, सिंपली फूड पासिस डाउन, है ना। that contraction and relaxation, what is this called, you must have studied in 10th standard, that is called peristalsis, rhythmic contraction and relaxation of muscles, है ना। contract relax इस तरह से होगा, that is called peristalsis। so वो क्या करेगा, what will peristalsis do, it will simply push the food, वो सिर्फ इसोफेगस में से फूड को पुश करेगा, और ये कहाँ एंटर करेगा, नाउ द फूड विल एंटर टू विच पार्ट, नाउ इट गोज टू स्टमक। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर के माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड, और वो भी 100% नहीं, अप्रोक्सीमेटली 40-50% स्टार्च इज गेटिंग डाइजेस्टेड इन योर माउथ। आफ्टर दैट फूड एंटर्स इनटू योर फूड पाइप, फूड पाइप में नो डाइजेशन अकर्स, नथिंग हैपेंस इन फूड पाइप, ओनली जस्ट फूड इज पुश्ड, नीचे ढकेला जाता है खाना, ठीक है। दैट इज बाय द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। जैसे खाना धक्का मारता है, धक्का ये हो जाता है खाने को, हम धक्का मार के, इट एंटर्स वेयर, इट एंटर्स इनटू स्टमक। नाउ एज सून एज इट एंटर्स इनटू स्टमक, इट विल रिमेन इन स्टमक फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 hours। स्टमक इज अ बैग जो खाने को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो वो कितने टाइम तक रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 hours। नाउ एज सून एज स्टमक के अंदर खाना जाता है, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द हार्मोन, नेम ऑफ द हार्मोन इज गैस्ट्रिन। नाउ दिस गैस्ट्रिन हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड, बच्चों ये गैस्ट्रिन हार्मोन निकलने लगता है। नाउ दिस गैस्ट्रिन हार्मोन विल एक्ट ऑन व्हाट, इट विल एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर द स्पेशल ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन योर स्टमक, ठीक है। और ये इसको क्या बोलता है, गैस्ट्रिन निकलता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करके क्या बोलता है, ये रिलीज करवाता है गैस्ट्रिक जूस, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डाइजेशन। इसके बिना डाइजेशन नहीं होगा। Like in mouth you have saliva, isn't it, that helps in digestion. In the same way in stomach you have gastric juice. So who secretes gastric juice, that is gastric gland, under whose effect, under effect of hormone called gastrin, okay. Now what does gastric juice have, so basically gastric juice has dilute HCl, pepsinogen, mucus and renin. You have to remember these 4 components, dilute HCl, पेप्सिनोजिन, म्यूकस एंड रेनिन। इतनी चीजें हैं गैस्ट्रिक जूस में।
अनदर थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द पीएच, लाइक यहाँ पर हमने पीएच याद किया था 6.2 to 7.3 और जनरली एवरेज दैट इज 6.7 पीएच है ना सलाइवा का। वैसे इसका पीएच इज 1.5 to 3.5, गैस्ट्रिक जूस का पीएच इतना है 1.5 to 3.5। नाउ आफ्टर दैट ये डाइल्यूट HCl जो है वो कौन बनाता है? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज नेम ऑफ द सेल्स। सो डाइल्यूट HCl बनाने वाले सेल का नाम है पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। अगेन आई रिपीट, नेम इज पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। पेप्सिनोजिन बनाने वाले सेल का नाम है चीफ सेल और पेप्टिक सेल, चीफ सेल और पेप्टिक सेल। और म्यूकस बनाने वाले सेल का नाम है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल हम तब यूज करते हैं, गॉबलेट टर्म वी यूज व्हेन एनी सेल इज सिक्रीटिंग म्यूकस ना, तो जनरली द टर्म यूज्ड इज गॉबलेट सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन है, रेनिन का इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है तुम्हें, ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्री नेम्स, दैट इज पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल which secretes dilute HCl. Other than dilute HCl also they secrete one important factor called intrinsic factor. एक्चुअल डाइजेशन में तो इनका रोल नहीं है, बट दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी मच हेल्पफुल। ओके, विदाउट दिस इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 विल नॉट बी एब्सॉर्ब्ड। हमारे खाने में जो भी विटामिन B12 है, you know it के भाई vitamins and minerals are not digested. I already explained you in my earlier lectures कि vitamins and minerals are not digested, they are absorbed as it is, isn't it? वो ऐसे ही लिए जाते हैं। तो हमारे खाने में जो भी विटामिन B12 है, अगर उसको हमें ब्लड में लेना है, if you want that vitamin should enter into your blood, particularly vitamin B12, तो you need help of this intrinsic factor. It's a protein, intrinsic factor. Okay, you have to remember the name intrinsic factor. It's a protein जो विटामिन B12 के absorption में मदद करता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 वोंट बी एब्जॉर्ब्ड और वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा, बॉडी के बाहर ये विटामिन B12 वैसे ही निकल जाएगा। सो ये इंट्रिंसिक फैक्टर हुआ। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl? सी डाइल्यूट HCl जो है वो कौन बनाता है? तो इट्स क्लियर, पैराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल और ऑक्जेंटिक बोल सकते हो, दैट्स सेम। सो वो ये डाइल्यूट HCl बनाते हैं। नाउ दिस डाइल्यूट HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल एक्टिवेट दिस पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन, अभी यहाँ पर पीछे नोजिन लगा हुआ है, नोजिन का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड। बेसिकली इट्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म, बट डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में इट विल बिकम एक्टिव। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। आई होप सो इट्स क्लियर बच्चों। तो डाइल्यूट HCl व्हाट इज फंक्शन? नाउ वन बाय वन वील हैव टू डू द फंक्शन, इजंट इट? जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन किए था हर एक का, तो ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे। तो डाइल्यूट HCl का काम क्या है? इट विल एक्टिवेट पेप्सिनोजिन टू फॉर्म पेप्सिन। अभी एक बार पेप्सिन बन गया बच्चों, तो व्हाट विल दिस पेप्सिन डू? यू नो, इट विल ब्रेक प्रोटीन। हमारे खाने में, हमारे निवाले में, हमारे फूड में जितना भी प्रोटीन है उसको ये ब्रेक करेगा पेप्सिन। और किस में कन्वर्ट करेगा? तो दो इर्रेगुलर टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। ओके, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। प्रोटीन का इतने बड़े टुकड़े को अगर तुम दो इर्रेगुलर टुकड़ों में ब्रेक कर दो, है ना, दो टुकड़ों में ब्रेक कर दो, बिकॉज प्रोटीन डाइजेशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। प्रोटीन डाइजेशन इजी नहीं है। ओके, सो प्रोटीन डाइजेशन क्या मुंह में चालू होता है? नो, प्रोटीन डाइजेशन डज नॉट अकर इन माउथ, इट स्टार्ट्स वेयर? इट स्टार्ट्स इन स्टमक। और कौन है पहला एंजाइम जो उसको तोड़ता है? सो नेम ऑफ दैट एंजाइम इज पेप्सिन। इज पेप्सिन सिक्रेटेड इन एक्टिवेटेड फॉर्म? नो, इट इज बेसिकली सिक्रेटेड इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, नेम इज पेप्सिनोजिन। और उसको कौन एक्टिवेट करता है इसको? तो इसको एक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl। सो जैसे पेप्सिन बनता है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है टुकड़ों में, विच इज कॉल्ड पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। सो दैट इज फंक्शन ऑफ पेप्सिन। नाउ नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? तो म्यूकस फॉर्म्स अ कोटिंग ना ऑन योर स्टमक वॉल, एक कोट जैसा बना देता है म्यूकस। व्हाई? टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl। You want to protect, देखो HCl, we need HCl, without HCl this enzyme won't be activated, but at the very same time this is acid, ये कोई ऐसा हल्का फुल्का केमिकल नहीं है, it's acid, तो it can rupture your stomach layer या it can rupture your stomach wall, isn't it? तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस it forms a coating on your stomach so that dilute HCl जो है वो स्टमक को डिस्ट्रॉय ना कर सके या स्टमक के वॉल को अफेक्ट ना कर सके।
ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ म्यूकस. कौन बनाता है म्यूकस? गॉबलेट सेल. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम इफेक्ट ऑफ HCl. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज दिस रेनिन. प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर डबल एन है, बिकॉज आगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे तो ये सेम नाम आएगा, बट वहां पर स्पेलिंग गेट्स चेंज्ड. इट इज RENIN, दैट इज रेनिन. तो ये दो अलग चीजें हैं. ये वाला किडनी वाला है और यहाँ पर डबल एन वाला जो है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम वाला. सो बच्चों प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक ही समझते हैं. तो यहाँ पर दो रेनिन, यहाँ पर डबल एन है रेनिन स्टमक वाला, और वहां पर किडनी वाला जब हम पढ़ेंगे तो दैट इज सिंगल एन. ओके, अब ये रेनिन क्या करता है? तो रेनिन बेसिकली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. सी, मिल्क is a complete diet, isn't it? A complete food, we know. Milk contains everything. It contains carbohydrate, it contains lipid, it contains vitamin, mineral. इसलिए मिल्क को complete food कहा गया है. So मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, I am not talking about sugar, I am not talking about vitamin and mineral, I am talking about protein. तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है केसिन. ये केसिन को डाइजेस्ट करना जरूरी है. So this केसिन is converted into पैराकेसिन. डाइजेशन के बाद ये केसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैराकेसिन. क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है? सो दैट इसका फर्दर डाइजेशन हो सके. अदरवाइज दिस केसिन इज अ सॉल्यूबल फॉर्म. इट इज इन अ सॉल्यूबल फॉर्म. वो वैसे ही बॉडी के बाहर निकल जाएगा अगर उसको पैराकेसिन में कन्वर्ट ना किया जाए तो. अगेन आई रिपीट, अगर केसिन को पैराकेसिन में नहीं कन्वर्ट किया गया तो दिस इज अ सॉल्यूबल फॉर्म, वो ऐसे ही निकल जाएगा. तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पैराकेसिन. सो which component is doing, कौन सा एंजाइम कर रहा है? दैट इज रेनिन. तो रेनिन जो है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कॉल्ड केसिन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू पैराकेसिन. अब रेनिन जो एंजाइम है वो किन के अंदर ज्यादा पाया गया है, किन लोगों के अंदर ज्यादा होता है? तो दैट इज स्मॉल इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, 1 साल के नीचे के बच्चे, इजंट इट? दे आर इन्फेंट्स, स्मॉल किड्स. तो उन लोगों का फूड जो है दैट इज मदर्स मिल्क. They do not eat, pulses or protein or like that. No doubt after 6 months we start giving them little bit of दाल का पानी एंड प्रोटीन थोड़ा थोड़ा देते हैं हम, बट स्टिल मेन फूड जो है उनका दैट इज मिल्क, मदर्स मिल्क है ना. दे मेनली डिपेंड ऑन मदर्स मिल्क. सो उनको तो ये मिल्क के अंदर से ही कार्बोहाइड्रेट लेना है, मिल्क के अंदर से ही प्रोटीन लेना है, मिल्क के अंदर से ही विटामिन मिनरल लेना है. वो कुछ और तो खा ही नहीं रहे हैं, isn't it? तो छोटे बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है. ओके, छोटे बच्चे जो है खास करके वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर रेनिन की मात्रा कंपैरेटिवली हाई होती है. व्हाई? सो दैट अच्छे से प्रोटीन, दूध के अंदर का जो प्रोटीन है दैट इज केसिन, दैट इज इजीली डाइजेस्टेड इनटू पैराकेसिन. आई वोंट से कि हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होता है, बट ऑब्वियसली हमारा डाइट में तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, है ना. दूध हम लोग पीते हैं मगर इतना तो है नहीं 24 घंटे दूध पी रहे हैं. सो इट डिपेंड्स कि छोटे बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन विल बी मोर इन अमाउंट. व्हाई? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज उनका जो पेट में जो बेसिकली जो उनका खाना होता है पेट में दैट इज अ मिल्क. तो मिल्क के अंदर का प्रोटीन डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दैट इज अबाउट रेनिन. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? नाउ दिस फूड इज सेमी डाइजेस्टेड. अगर तुम गौर करो तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इज सिर्फ डाइजेस्ट हुआ है, दैट इज इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माल्टोस, और तो कुछ मुंह में डाइजेस्ट हुआ नहीं है. ईसोफेगस में भी कुछ हुआ नहीं है. नाउ एज सुन एज यू एंटर इनटू स्टमक, स्टमक में भी बेसिकली चलो ये भी मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है या ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, बट इज इट कंप्लीटली डाइजेस्टिंग प्रोटीन? नो, सिर्फ छोटे से टुकड़े में कन्वर्ट हो रहा है. लाइक बिग प्रोटीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस, और मिल्क केसिन इज कन्वर्टेड इनटू पैराकेसिन. मतलब इन शॉर्ट सिर्फ प्रोटीन. अभी तो बहुत सारा डाइजेशन अभी बाकी है, विच विल बी डन इन डियोडिनम. डियोडिनम इज कंसिडर्ड एज मेन साइट ऑफ डाइजेशन. इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का पार्ट है दैट इज डियोडिनम. तो मेजर डाइजेशन अकर्स इन डियोडिनम. स्टमक में हमने देखा, हमने माउथ में देखा कैसे डाइजेशन हुआ है. अब स्टमक में जो डाइजेशन हुआ है ये इनकम्प्लीट डाइजेशन है, कंप्लीट नहीं है, partially digested, isn't it? So यहाँ पर फूड कैसा है? So it is partially digested. Yes. Is it acidic? Yes, it's acidic. है ना? So partially digested, acidic and even it is semi-solid. मतलब गैस्ट्रिक जूस के मिक्स होने की वजह से ये थोड़ा पतला हो गया है.
इट इज अब हमने जब खाया तो वी हैव इटन अ सॉलिड फूड, बट एज सुन एज इट मिक्सेस विद स्टमक एंड वाटर एंड म्यूकस इट बिकम्स लिटिल बिट लिक्विफाइड, है ना, थोड़ा पतला हो जाता है वो। तो अभी कैसे हो गया है खाना, कैसे हो गया, यू हैव टू रिमेंबर 3 टर्म्स। बच्चों तुम्हें 3 शब्द याद रखने हैं, दैट इज सेमी डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड, एसिडिक फूड। ओके, पार्शियली डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड कहां पर बना है ये, इन स्टमक। इट इज कॉल्ड व्हाट, इसका एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, दैट इज चाइम। You have to remember this, it is called chyme. So semi-digested acidic food in stomach is called chyme. Now what will happen, slowly and gradually, थोड़े थोड़े अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में स्टमक से खाना जो है will pass to duodenum. Is it clear? थोड़े थोड़े अमाउंट में food will pass to duodenum and further digestion will occur. So what is chyme? Semi-digested acidic food in stomach is called chyme. Now next part where digestion occurs is duodenum, which is a main site of digestion. Hope so you enjoyed the lecture. Thank you all. Bye.